Hello students, in previous classes we have discussed about the Kp Kc, in which we have dealt about the relationship between Kp and Kc. Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है ये हम लोगों ने देखा था कि Kp इज इक्वल टू क्या होता है Kc RT Ng, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने ये रिलेशन और देखा था कि Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू होता है RT Ng। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो चलो आज हम लोग कुछ एक नए टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है, कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो देखो पार्शियल प्रेशर होता क्या है। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या है, अगर हम इसे डिफाइन करें तो मान लो हमारे पास कोई एक एलिमेंट है। जैसे पहले हम लिख लेते हैं कि द इंडिविजुअल pressure of a gas, individual pressure of a gas is called its partial pressure। मान लो हमारे पास कोई एक we have a container here and filled with gases. These gases exert the pressure on this wall and these pressures of this particular gas is known as its partial pressure। क्लियर है ना? मीन्स पार्शियल प्रेशर क्या है, उस गैस की इंडिविजुअल प्रेशर को ही हम उसको क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, यहां पर एक गैस है A, हियर इज B एंड हियर इज C। A का पार्शियल प्रेशर है 2 atm, B 3 atm and C exerts the pressure on this wall is 5 atm। तो बताओ पार्शियल प्रेशर अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू 2 atm, partial pressure of gas B is equal to 3 atm। Again we can write as partial pressure of gas C is equal to 5 atm। So all these pressures which is given by the particular gas on this container is known as its partial pressure। partial pressure क्या होता है, किसी भी गैस का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस कंटेनर पर, उसको हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? अब इसमें अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर इक्वल की मान लो हमें निकालना है टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, मीन्स ऑल दीज गैसेज A, B and C, all these three gases exert the pressure on this container wall। How much is means total pressure of this gas A will be, means P total if we have to calculate P total, then what will be pressure, partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C। Is that means how much? 2 plus 3 plus 5 atm is equal to 10 atm। This 10 atm indicates the total pressure exerted by the gases in this container on the wall of the container। क्लियर है ना? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील
so many type of calculations in which we have to find out the partial pressure of the gases. If any container is any amount of gases is given in a container, and you have to find out the pressure exerted by the single gas, means 2 or 3 mixture of gases, 2 or 3 gases are mixed together and fill in a container, in which we have to find out the partial pressure of any one gases. Then we have to calculate H. Clear? So we have to know that, copy it, and after that we will move on next point. Okay? I hope you all have copied it. अब देखो यहां पर हम अगर बात करें पार्शियल प्रेशर, हाउ कैन वी फाइंड? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर कितना है. पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर. एंड यू ऑल हैव नोन अबाउट द मोल फ्रैक्शन. मींस मोल फ्रैक्शन कितना होता है बताओ? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ द कंपाउंड, मोल ऑफ कंपाउंड divided by total moles. Okay, means mole fraction. If we have to find out the partial pressure, then first of all we have to know about the mole fraction, which is discussed in earlier chapter. पहले वाले चैप्टर में हम लोग मोल फ्रैक्शन कवर कर चुके हैं. X याद होगा आप लोगों को. ये मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर तो दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो आप पता कर सकते हो, ये दिया ही रहेगा अक्सर. टोटल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन हाउ कैन वी फाइंड? इफ मोल फ्रैक्शन इज नॉट गिवन, mole of the compound is given and total moles, then mole of the compound is divided by the total moles, we can find the mole fraction. Okay, and after finding the mole fraction we can easily find the partial pressure exerted by the gas on the container. Okay, तो कॉपी करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ इसे आप पॉज करो, फिर आप लिखते रहना. उम्मीद है कि पॉज करके लिख लिए होंगे आप लोग. After that we are going to discuss about the application of equilibrium constant. तो देखो एप्लीकेशन इसका क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों पढ़ते हैं, इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं और इससे हमें फायदे क्या हो सकते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं. देखो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम constant. Application of equilibrium constant to first. अब फर्स्ट क्या है? प्रेडिक्ट the extent of reaction, on the basis of magnitude. प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड. किस तरह से प्रेडिक्ट होता है रिएक्शन में बेसिस के मैग्नीट्यूड पर. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट. ओके,
तो देखो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। इफ Kc means equilibrium constant is greater than 10 to the power 3, अगर Kc 10 to the power 3 से ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स predominates over reactants। ठीक है, अगर Kc 10 to the power 3 से ज्यादा है, प्रोडक्ट्स predominates over reactant। ओके, that is if Kc is very large। मान लो Kc, हमने Kc फाइंड आउट किया। Kc आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इसका एक्सप्रेशन आप लोग जानते हो। Kc फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, Kc इज इक्वल टू क्या आप लोग देखे हो, concentration of C to the power C, its coefficient C, ये कैपिटल C है, into concentration of D to the power its coefficient D, and concentration of A to the power A into concentration of B to the power B। किस रिएक्शन के लिए ये है वैलिड, A plus B gives C plus D। इस रिएक्शन के लिए हम लोगों ने ये Kc फाइंड किया था। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ दिस Kc, अगर हमने ये दिया concentration of C, concentration of D, concentration of A and concentration of B are given in your questions, then first of all you have to find out the Kc। Kc आपने पता कर लिया। if Kc is greater than 10 to the power 3, then product predominates over reactant, means if Kc is very large, the reaction proceeds nearly to completion। आप यहां से समझो कि if Kc is very large, the value of Kc is very large means 10 to the power 3 से अगर ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, the reaction proceeds nearly to completion। रिएक्शन क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। क्लियर है ना, मीन्स व्हाट, Kc indicates about the completion of the reaction। Kc indicates about the reaction that it is about to completion or reaction is not proceed or proceed in which direction also। So first point is if Kc is greater than 10 to the power 3, products predominates over reactants, means Kc is very large, then the reaction proceeds nearly to completion। Clear? Now अब इसका एग्जांपल लेते हैं। The reaction of hydrogen and oxygen at 500 Kelvin। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर 500 केल्विन पर होता है तो इसका जो Kc होता है, Kc is equal to 2.4 into 10 to the power how much, 47। अब देखो यहाँ 10 to the power 47 means it is extremely large from 10 to the power 3। ओके, तो क्या होगा कि इस केस में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, अबाउट टू कंप्लीट मीन्स नियरली टू कंप्लीशन। क्लियर? तो इसे जल्दी आप कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ Kc is less than 10 to the power 3, 10 to the power minus 3 means extremely less. अभी बताएंगे आगे कैसे, क्यों. Kc is less than 10 to the power minus 3, then what will be happen, reactants predominates ओवर प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे इसका मतलब ये हुआ इफ Kc is very small. In first case Kc is very large, extremely large, means 10 to the power 47 हमने चेक किया था. अभी क्या कर रहा है कि Kc is extremely small, means smaller than 10 to the power minus 3. इससे भी अगर Kc कम है, means if Kc is very small, then the reaction proceed rarely. ठीक है, शायद ही रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड होगा. रेयरली. यू हैव टू बी केयरफुल, मीन्स Kc gives the information about the reactions that it will be proceed or not. It will proceed, then how, where, in reactant side or product side. Is that? तो इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो मैं एग्जांपल में लिख सकता हूं कि अगर मान लो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज गैस, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस एंड इट गिव्स 2NO what gas at 298 Kelvin temperature. ओके, तो इस केस में, इन दिस केस द Kc मीन्स हैज Kc वैल्यू इज इक्वल टू, मीन्स Kc कितना होता है इसका, इस केस में नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस एंड गिव्स नाइट्रस ऑक्साइड गैस एट 298 केल्विन एंड Kc वैल्यू is equal to 4.8 into 10 to the power minus 31. Here check, minus 10 to the power minus 31. It is extremely small. Then if it is extremely small, then reactant product predominates over product. Means what? Reaction proceed rarely. Clear है ना? Means अगर Kc की वैल्यू आपकी 10 to the power 3 से बहुत कम हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली. इन फर्स्ट केस इफ Kc इज एक्सट्रीमली लार्ज, मींस 10 टू द पावर 3 से अगर ज्यादा है तो उस केस में क्या होता हुआ था कि रिएक्शन नियरली टू कंप्लीशन था, नियरली टू कंप्लीशन, अब कंप्लीट होने वाला है, अबाउट टू कंप्लीट. क्लियर है ना? अब हमारा थर्ड पॉइंट है, चलो इसे आप देख लेना, फिर पॉज करना और कवर करना, फिर इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. ओके, तो थर्ड पॉइंट इज if Kc is in the range of 10 to the power minus 3 to 10 to the power 3. अगर इसके रेंज में है, मीन्स 10 to the power 3 एट 10 to the power minus 3 and 10 to the power 3 के बिटवीन है, इस रेंज में है, then what will be happen?
appreciable concentrations of both reactants and products appreciable concentration of both reactant and products proceeds. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो N2O4 टू NO2, N2O4 अगर कन्वर्ट होता है NO2 में, ठीक है, तो इस केस में is a reaction with इस केस में Kc की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू आता है 4.64 इंटू 10 टू द पावर -3 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां पर आप देखो 10 टू द पावर -3, हमने क्या कहा कि इफ Kc इज इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर 3, इसके रेंज में अगर है तो उसमें क्या होगा, एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रोसीड्स। तो यहां पर क्या प्रोसीड होगा, एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस। यहां आप देख रहे हो कि दिस वैल्यू is neither too small nor too large, means it is in the range of 10 to the power 3 to 10 to the power -3 to 10 to the power 3। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि रिएक्शन